Hello students, welcome to online session 7 of chapter number 5 server side scripting PHP. लास्ट सेशन में हमने PHP के जितने भी प्रोग्राम्स टेक्स्ट बुक वाइज थे वो सब हम कंप्लीट कर दिए थे. आज हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ exercise of chapter number 5, that is server side scripting, which is only for 12th science students. Question number 1 says fill in the blanks. Okay. First fill in the blank is PHP is dash side scripting language. The answer is server. PHP is server side scripting language. Second fill in the blank is PHP is dash language, that is there is no need for compilation. The answer is interpreted. PHP is an interpreted language, that is there is no need for compilation. Third is a variable starts with dash sign followed by variable name. Answer is dollar sign. A variable starts with dollar sign followed by a variable name. Fourth fill in the blank is and dash is a variable which can hold more than one value at a time. Answer is array. An array is a variable which can hold more than one value at a time. Fifth number fill in the blank is information can be passed to functions through dash. Answer is arguments. Information can be passed to functions through arguments. Second question says true or false. First is PHP is a platform dependent scripting language. Answer is false. PHP is a independent platform scripting language. कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है. Second says $_post is an array of variable passed via the URL parameters. Answer is false. Third is a function is a block of statement that can be used repeatedly in a program. Answer is true. Fourth number is PHP cannot be embedded along with HTML tag. Answer is false. PHP can be embedded along with HTML tags. Fifth one is get should never be used for sending sensitive information. Answer is true. ओके, गेट मेथड से क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में यूजर फिल करता है वो हमें यूआरएल के साथ एड्रेस बार में दिखाई देती है, इसलिए वहां पे इट इज नॉट फेवरेबल टू सेंड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विथ द मेथड गेट. ओके. थर्ड क्वेश्चन सेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज वन करेक्ट आंसर. आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से कोई भी एक करेक्ट आंसर होगा, आपको जो सिलेक्ट करना है. फर्स्ट number is the program file of PHP have dash extension. PHP के फाइल को कौन सा एक्सटेंशन होता है? आंसर इज .php. ओके. Second says a variable declared dash a function has a global scope. कौन से वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप रहता है? सो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आउटसाइड, एनीवेयर, इनसाइड, नन. द आंसर इज आउटसाइड. थर्ड नंबर सेज द डैश फंक्शन रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग का कुछ पार्ट रिटर्न करता है? दिया हुआ है ट्रिम फंक्शन, यूसी वर्ड्स, देन सब स्ट्रिंग एंड एसटीआर पोज. तो यहाँ पर आंसर है सब स्ट्रिंग फंक्शन जो है पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज टू करेक्ट आंसर. थर्ड में हमने वन करेक्ट आंसर सिलेक्ट किया था, मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर होगा. अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है टू करेक्ट आंसर. नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीज हो जाएंगे, उसमें से दो सही जवाब है. लिखा हुआ है द डैश एंड डैश आर वैलिड डेटा टाइप इन पीएचपी. डेटा टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, डबल, वैरचर, इंटीजर, एरे, बिग इंट. तो आंसर इज इंटीजर एंड एरे आर द वैलिड डेटा टाइप्स इन पीएचपी. Second says single line comment in PHP is possible using dash and dash. Single line comment किस तरह से हम PHP में दे सकते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको. So the answer is टू फॉरवर्ड स्लैश और डॉलर, सॉरी, और हैश सिंबल. अगर किसी भी स्टेटमेंट से पहले हमने दो फॉरवर्ड स्लैश या हैश सिंबल यूज किया है तो वो कमेंट बन जाएगा. कमेंट मतलब कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा.
क्वेश्चन नंबर 5 says multiple choice question, that is 3 correct answer. अब नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्शन में से आपको कोई भी 3 करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने हैं. In PHP, 3 types of arrays are dash, dash and dash. Okay, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, indexed, simple, associative, multi-dimensional, complex, general. Answer is indexed, associative and multi-dimensional. Second says the scope of variable can be dash. ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोकल, ग्लोबल, यूनिवर्सल, स्टैटिक, फाइनल और आउटसाइड. आंसर इज लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 5th चैप्टर का सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बाय यूजिंग पीएचपी का टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया. ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स एसओपी, दैट इज स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5. यहाँ पे हमें दिया हुआ है, आपको पता था कि इन ऑल हमें 12 इस साल हमें कंप्लीट करने थे, बट क्योंकि बोर्ड ने 25% सिलेबस का डिडक्शन किया है, तो हमें एडवांस वेब डिजाइनिंग में से आउट ऑफ 5 हमें 3 करने हैं. जो पहले 5 करने थे अभी 3 करने हैं. जावा स्क्रिप्ट में से पहले 4 करने थे, अभी हमें 2 ही परफॉर्म करने हैं. और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में से पहले 3 परफॉर्म करने थे, अब हमें 2 परफॉर्म करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद एसओपी ऑफ पीएचपी. यहाँ पे स्टूडेंट देखो लिस्ट दिया हुआ है कि हमें कौन कौन से एसओपीज मिले हुए हैं, बट क्योंकि 3 4 5 6 7 अभी ये या तो डेटाबेस कनेक्शन से हैं जो हमें इस साल नहीं करना है, या तो एसोसिएटिव एरेज से रिलेटेड है जो कि इस साल हमें वो टॉपिक नहीं करना है. तो यहाँ पर हम करेंगे एसओपी नंबर 1 और एसओपी नंबर 2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एसओपी नंबर 1. SOP number 1 says write a PHP program to check if a person is eligible to vote or not. The program should include the following. हमें एक प्रोग्राम बनाना है PHP में. हमें ये डिसाइड दिखाना है कि पर्सन जो है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है. हमें प्रोग्राम में क्या दिखाना है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोट इज 18 years, then use PHP functions यूज करने हैं एंड यूज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ये तीनों का हमें अपने SOP प्रोग्राम में यूज करना है. तो चलिए बनाते हैं SOP नंबर 1. तो हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड प्लस प्लस. ओके, यहाँ पे हम पहले डॉक टाइप HTML हेड टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, body tag start, form, then form tag close, body tag close and HTML tag close. तो ये है हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे हमने देना है बॉडी में मेथड. हम कौन सा यूज करते हैं, तो मेथड इज सपोज हमने पोस्ट यूज किया, देन एक्शन ये PHP के किस फाइल के साथ लिंक्ड होगा, तो हम फाइल बनाएंगे vote.php. ये फॉर्म बना रहे हैं जिसमें से हमें यूजर से इंफॉर्मेशन लेना है. एंटर योर नेम, जिसके लिए हमें एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स देना है. इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू सपोज A1 क्या करेगा, ये मेरी यूजर का जो नाम है वो सर्वर के पास लेकर जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है एंटर योर एज. उसके लिए भी हमें देना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू A2 एंड एक बटन रखना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट. तो हमारा फॉर्म हमने क्रिएट कर दिया है. फाइल को हम सेव करेंगे. आपको पता होगा हम फाइल कहाँ सेव करते हैं, माई कंप्यूटर में, सी ड्राइव में, जैम फोल्डर के अंदर आपको HD डॉक्स नाम का फोल्डर मिलेगा. यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं SOP1. ओके, SOP1 फोल्डर के अंदर हमने इसको नाम दिया index.html. दे दो तो भी चलेगा, PHP देते हो तो भी चलेगा. ओके, सो सेव. लेट्स स्टार्ट विथ
लोकल होस्ट /SOP1। तो यहाँ पर देखो आपको इंटर योर नेम एंड इंटर योर एज BR टैग दे देते हैं। या तो हमने सीखा था प्री टैग क्या करता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर हेडिंग भी दे देते हैं, H1 align equals to center, eligibility for voting, H1 tag close। ओके, फाइल को हमने सेव किया। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें क्या देना है, यूजर से नाम लेना है। सपोज यूजर का नाम है अंजू, देन एज देनी है यहाँ पे। सपोज यूजर ने एज डाला 18 ईयर्स एंड सबमिट। तो ये डेटा जाता है और चेक होता है कि जो यूजर ने डेट डाला है वो एलिजिबल है या नहीं वोटिंग के लिए। तो यहाँ पर देखो आपको नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फाइल कनेक्शन दिया है vote.php वो फाइल तो हमने बनाया ही नहीं। तो एक और फाइल बनाएंगे हम इसमें, HTML body ?PHP tag close body tag close HTML tag close। ओके, अब यहाँ से हमें जो डेटा मिल रहा है उसको चेक करना है। तो पहले पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो फर्स्ट हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन वोट। ओके, यहाँ पर हमने लिया एक वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, नेम में नेम कहाँ से आएगा, यूजर ने जो ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिखा है जिसका क्या है A1 एंड A2, और हमने मेथड कौन सा लिया है, पोस्ट। तो आपको पता होगा हमें किस तरह से लिखना है, नेम $_ पोस्ट, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट के अंदर इनवर्टेड कॉमा में A1। यहाँ से यूजर का नाम पास होगा और नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सेकंड है एज इक्वल्स टू $post, देन इनवर्टेड कॉमा में A2 वेरिएबल जो है वो पास करेगा यूजर की एज इस एज नाम के वेरिएबल में। यहाँ पर देखो हमने लिया था जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसको हमने नेम दिया था A1, और जो एज वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसको हमने नेम दिया था A2। तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ पास होगी, यहाँ पे नेम में और एज में। ओके, अब चेक करेगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, if in bracket $age is greater than is less than 18, then क्या देगा, echo $name, नेम प्रिंट करेगा, then concatenator dot you are not eligible for voting। ओके, एल्स अगर यूजर की एज जो है वो 18 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा नाम, देन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, हमें फंक्शन क्रिएट किया। अब फंक्शन को हमें क्या करना है, कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है, वोट। ओके, चलिए देखते हैं। फाइल को हमने सेव किया, SOP1 फोल्डर के अंदर नाम हमें देना है vote.php एंड सेव। चलिए अपने प्रोग्राम में इंडेक्स में हमने डाला
रीटा, और यहाँ पे हमने दिया से 16 एंड सबमिट। तो यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड दिस एक्सपेक्टिंग, और लाइन नंबर 12। चलो देखते हैं लाइन नंबर 12 क्या है। लाइन नंबर 12 इज दिस। ओके, नहीं ये करेक्ट है। फंक्शन 1 2 3 1 2 3, ये इफ वाला, ये इस वाला, और ये फंक्शन वाला प्रॉपर है। सेमीकोलन नहीं दिया है स्टूडेंट्स हमने, टर्मिनेशन इसके लिए वो हमको रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, बाकी सब कर्ली ब्रैकेट्स प्रॉपर है। बैक जाएंगे, ये फॉर्म है हमारा, यहाँ पर सीता से एज 16, सबमिट। सीता यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, तो थोड़ा हम स्पेस देते हैं। किस तरह से देंगे, यहाँ पर फाइल को सेव किया, आ जाइए फिर से, गीता यहाँ पे एज दिया 25, सबमिट। सो गीता यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पर हमने एसओपी स्टूडेंट्स ख़त्म किया, जिसमें हमें 2 फाइल्स बनाए। एक में हमने फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म में हमने यूज़र का नाम लिया, और उसके बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया। यहाँ पर उस टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया हमने A1। ये A1 वैल्यू जो है यूज़र का नाम क्या करेगा, पास करेगा सर्वर में। दूसरा हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया एज के लिए, ये उसमें उस टेक्स्ट बॉक्स को हमने नाम दिया A2। ये एज को लेकर जाएगा सर्वर में, और यहाँ पे हमने vote.php फाइल हमने क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पे एक्शन में हमने वही नाम दिया है, तो हमें उसी नाम से सर्वर में फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हमने $नेम नेम वेरिएबल हमने क्रिएट किया, जो कि A1 की वैल्यू जो है वो नेम नाम के वेरिएबल में पास होगी, और A2 मतलब एज नाम के वेरिएबल में पास होगा। फिर चेक करेगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एज इज लेस देन 18 देन नेम, जो नेम वेरिएबल में नेम आएगा वो प्रिंट करेगा, और ये हमें इस तरह से मैसेज देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर यूजर ने एज जो है 18 इयर्स के ज्यादा डाला है, तो वहां पे आएगा, नाम आएगा, एंड यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने SOP 1 जो है वो कंप्लीट किया। आते हैं सेकेंड SOP की तरफ। Second SOP says write a PHP function to count the total number of vowels. Vowels कौन से होते हैं आप सबको पता है, A E I O U from the string। मतलब हमें यूजर से स्ट्रिंग लेना है, और उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स आ रहे हैं वो हमको काउंट करके बताना है। ओके, सो एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग HTML फॉर्म। हमें एक फॉर्म बनाना है जिसमें हम यूजर से स्ट्रिंग डेटा लेंगे। ओके, तो चलो फॉर्म बनाते हैं। तो SOP 2 से रिलेटेड हमें एक फॉर्म बनाना है, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं डॉक टाइप HTML हेड टाइटल काउंट ऑफ vowels, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, एंड HTML टैग क्लोज। फॉर्म में हम यूज करते हैं एक्शन इक्वल्स टू vowel डॉट PHP, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ओके, यहाँ पे हम प्री दे देते हैं, एंटर स्ट्रिंग, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू A1। ओके, एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हैं यूजर को, जहां पर यूजर स्ट्रिंग टाइप करेगा, एंड एक सबमिट बटन दे रहे हैं। उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रखा A1, जो हमारे यूजर की डेटा को सर्वर तक लेकर जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट,
वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। ओके, चलो फाइल को हम सेव करते हैं। फाइल, सेव, इंडेक्स sop2 डॉट PHP भी करेंगे तो भी चलेगा, HTML से भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमें एक और फाइल बनाना है, vowels.php फाइल। तो फाइल, न्यू, HTML, बॉडी, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। यहाँ पर आएगा हमारा PHP का कोडिंग। पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डॉलर यूजर str, जो के पोस्ट मेथड A1 से। यहाँ पर हमने देखो क्या नाम रखा है, A1। मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर स्ट्रिंग डालेगा, A1 वेरिएबल उसको लेके सर्वर के पास आएगा और यूजर str में वो स्टोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सो अभी यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं द नंबर ऑफ vowels in user str are। ओके, यहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, काउंट vowels यूजर str। ओके, यूजर str में जितने भी स्ट्रिंग में वॉवेल्स हैं, तो ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, उनको यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो चलिए पहले फंक्शन को बनाते हैं। फंक्शन काउंट वॉवेल्स। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ओके, तो यहाँ पर फंक्शन अपने लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है जिसमें वो स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं काउंट, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0। एक और वेरिएबल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्ट्रिंग डेटा में कैरेक्टर्स हैं, यूजर उसको काउंट करेगा। तो अब यहाँ पे यूजर जो है वो चाहे स्मॉल में डाले या कैप्स में डाले, कोई भी स्ट्रिंग डेटा डाल सकता है। तो यहाँ पर हमने उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने से पहले हमें लेंथ चेक करना है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, $L इक्वल्स टू डॉलर सॉरी strlen फंक्शन है, जो कि $str वेरिएबल में जो भी स्टोर्ड है उसकी लेंथ काउंट करे और l नाम के वेरिएबल में स्टोर करे। ओके, अब चेक करेगा। सो लूप में फॉर $i इक्वल्स टू 0, i की इनिशियल वैल्यू मतलब फर्स्ट कैरेक्टर से चेक करेगा। i का लूप तब तक चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू लेंथ जितनी है उतनी नहीं हो जाती है, एंड i की वैल्यू में एक पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्या करना चाहिए, अब यूजर कैसे भी यहाँ पर टाइप कर सकता है। पहले पहले अगर कैपिटल में टाइप किया या स्मॉल में या आधा कैपिटल आधा स्मॉल, तो पहले पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया ch str to lower $str में जितने भी स्ट्रिंग है उसमें से हर एक को कन्वर्ट करे और ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करे। अब ये चेक करेगा क्या, इफ ch इज इक्वल्स टू, उसमें क्या a वॉवेल है,
और CH इक्वल्स टू E है और CH में जो भी स्ट्रिंग डेटा है उसमें से कोई I है और CH में जो भी स्ट्रिंग डेटा है AEIO, देन CH में जो भी स्ट्रिंग डेटा है उसमें कोई U है वो चेक करेगा। ओके, अगर है तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट में वो स्टोर करता जाए। ओके, यहाँ पर ये फॉर का लूप क्लोज हुआ। अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, सो रिटर्न काउंट। काउंट जो है वो आपको रिटर्न करेगा नंबर, क्योंकि काउंट वेरिएबल है तो हमने यहाँ पे डॉलर साइन देखो नहीं लिया है, तो हमें हर जगह डॉलर साइन लेना है। चलिए देखते हैं, ये देखें फॉर का लूप चालू हुआ, इफ का ये यहाँ पे खत्म हुआ, ये फॉर का खत्म, 1 2 3 ओपनिंग 3 क्लोजिंग। ओके, चलो देखते हैं। अभी फाइल को हमने सेव किया, फाइल को हमने कौन से नाम से सेव करना है, vowels.php। फाइल सेव, हमने कहाँ फाइल सेव किए हैं, PHP में। vowels.php, चलिए ओपन करते हैं। पहले फाइल को हमने नाम दिया है index.sop2। सो लोकल होस्ट PHP प्रोग्राम्स index.sop2.html, HTML दिया, PHP दिया। ओके, सो यहाँ पर आया इंटर स्ट्रिंग डेटा हेलो। तो यहाँ पर आपको दो वॉवेल्स दिख रहे हैं, सबमिट। क्या आ रहा है यहाँ पे, सर्वर ऑन नहीं है, तो पहले हम सर्वर को, सर्वर इज ऑन। चलिए देखते हैं क्या, फाइल अलग अलग जगह पर है। फाइल को पहले सेव करते हैं प्रॉपरली। फाइल सेव एज XAMPP में htdocs के अंदर PHP प्रोग्राम्स के अंदर vowels.php। ओके, चलो फाइल प्रॉपर नहीं मिला इसलिए था। यहाँ पर हमने दिया हेलो से सबमिट। लाइन नंबर 7 में, लाइन नंबर 7 इज दिस, इसमें क्या मिस्टेक है, यूजर str बराबर लिया है, index.sop2.html। ओके, यहाँ पर हमने लिखा हेलो सबमिट, तो यहाँ पे बता रहा है लाइन नंबर 7 में मिस्टेक है। लाइन नंबर 7 ये मतलब इससे पहले यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन दिया। फाइल सेव, अब आ जाइए देखते हैं, बैक जाएंगे HTML फाइल में से हेलो सबमिट। तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन हेलो आर 2 E and O। चलिए एक और देखते हैं, हाउ आर यू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो हेलो हाउ आर यू में कितने हैं वॉवेल्स, 5। ओके, चलिए एक और देखते हैं, गुड आफ्टरनून 1 2 3 4 4 O है, एक ए है और एक ई है, मतलब 6। सो नंबर ऑफ वॉवेल्स आर 6। क्लियर।
तो यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, हमने एक फॉर्म क्रिएट किया जिसमें यूजर से स्ट्रिंग डेटा लिया और इसको कनेक्शन दिया वॉवल्स डॉट php के साथ। वॉवल्स डॉट, अब ये काम कैसे करता है अच्छे से हम लोग ध्यान से समझेंगे। ओके, अब वॉवल्स डॉट php देखो क्या किया। पहले पहले यहाँ से A1 में जो इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने स्ट्रिंग डाला है वो सर्वर के यूजर str नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, ये जो पैरा आर्ग्यूमेंट्स है ये फंक्शन को हम पास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया काउंट वॉवल्स नाम का, और उसमें हमने एक, ये फंक्शन ने अपने वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें वो आर्ग्यूमेंट पास होंगी। एक और वेरिएबल लिया जिसका बाय डिफॉल्ट जो काउंट था वो 0 था, मतलब कोई भी उसमें स्टोर नहीं है। देन हमने एल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि यहाँ पे जो यूजर से स्ट्रिंग डेटा आई है उसकी लेंथ काउंट करेगा और एल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। अभी क्योंकि हर एक कैरेक्टर हमको चेक करना है, जितना भी, अभी यहाँ पे देखिए कितने कैरेक्टर्स हैं इनलॉ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे 14 कैरेक्टर्स को ही चेक करना है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट को कॉल किया। फॉर स्टेटमेंट क्या करेगा, आई में हमने इनिशियल मतलब फर्स्ट जी से चेक करेगा, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स खत्म नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी लेंथ जो है वो स्टोर्ड है, इसलिए आई का लूप कब तक रहेगा, जब तक एल की लेंथ है। देन हर बार आई का लूप में क्या करेगा, एक एक वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब यूजर कैसे भी टाइप कर सकता है, चलो देखते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे गुड जो है वो कैपिटल में टाइप किया है और आफ्टरनून स्मॉल में टाइप किया है, तो भी देखते हैं हमें सही बताता है या नहीं। सबमिट, तो भी हमें देखिए यहाँ पे सही बता रहा है। दैट मीन्स वो हमने जो अल्फाबेट्स दिए हैं चाहे वो कैपिटल में हो स्मॉल में है, तो उसको चेक कर रहा है। उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक ch नाम का वेरिएबल लिया जो कि यूजर ने जो भी डेटा यहाँ पे लिखा है जैसे भी लिखा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और ch नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करेगा। अब उस स्ट्रिंग डेटा में अगर ch में ए वॉवेल, ए कोई कैरेक्टर है या ई है या आई है, यहाँ पे इसलिए हमने और ऑपरेटर का यूज किया है, देन ओ है और यू है। कोई भी इसमें से पांचों वॉवेल्स में से कोई भी अगर कैरेक्टर है तो काउंट में वो नंबर स्टोर करे, और हर बार ये चेक करेगा। कब तक चेक करेगा, जब तक आई की वैल्यू जो है वो लेंथ तक पूरे काउंट नहीं हो जाती है तब तक। और उसके बाद हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा काउंट, मतलब नंबर बताएगा। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे हमने पहले यूजर से डेटा लिया, स्ट्रिंग लिया। सपोज यूजर ने हमें यहाँ पे लिखा हाउ, ये लिया ना हमने। चलो इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसमें कितने हैं, E A E I O U, 1 2 3 4 5, चलो देखते हैं 5 है। सबमिट, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5। ओके ओके, चलो एक और देखते हैं। इंफॉर्मेशन के साथ हम टेक्नोलॉजी भी देते हैं। टेक्नोलॉजी में कितने हैं, 1 2 3। ओके, सबमिट, तो यहाँ पर देखो 8 दिखाई दिया। और जैसा यूजर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्मॉल और कैपिटल में डाला है वैसे ही चेक किया और उसमें से नंबर ऑफ वॉवेल्स हमें काउंट करके बताए। तो ये था आपका एसओपी नंबर 2, जो कि लिखा था कि यूजर से हमें स्ट्रिंग डेटा लेना है और उसमें वॉवेल्स जो हैं वो काउंट करके हमको बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बाय यूजिंग पीएचपी, उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ और एसओपीज भी कंप्लीट किए। तो यहाँ पे हमने 2 एसओपीज किए, 1 एंड 2, डेटाबेस कनेक्शन और एसोसिएटिव एरेज से रिलेटेड एसओपी आपको नहीं करने हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में।